Dear students, in this video, I am discussing about the Companies Act 2013. Companies Act is the company law which is prevalent for the formation, winding up, rights, duties, liabilities of directors, members, promoters, and other managerial personnel. So let us discuss the act. So the Companies Act 2013, it is an act of the Parliament of India on Indian company law which regulates the incorporation of a company, responsibilities of a company, directors or dissolution of a company. So it talks about the details of company formation, its liabilities, its members, its promoters, its directors, and the uh, share capital and the types of shares, the types of companies, how company can be incorporated. So this law is applicable in whole of India. It is amended in 2017. This is the act which is applicable in case of the companies. Now, first we should know what is company. According to Act, company is a voluntary association of members for some common purpose. The common purpose is the business. So, company is the artificial person which is invisible, intangible, created under law with a discrete legal entity, perpetual succession, and a common seal. So, let us discuss these features of the company in detail. Company का simple meaning है association of members. So members are the people who are making the company, who makes the company. So characteristics of the company are that it is having a separate legal entity. The meaning of separate legal entity is that company and the members both are different. Members are a different legal entity, so members can sue the company or company can sue the members. Company can sue others and company can be sued by others. So if some fraud is done by the members, so company cannot be sued, so members would be sued. If there is a fraud done by the company, so members cannot be sued, the company would be sued. Limited liability, generally companies have limited liability, it means the members have the limited liabilities. Then the perpetual succession, it means that company's age is not limited on the age of the members. It has a the existence of company is for a long period of time. Then common seal, company has a common seal, it means company can sign on the contracts by the seal. So seal is the signature of the company, how the company would verify its decisions with the help of the common seal. Company has a separate property than the members, so members have separate property and company has a separate property. Transferability of share means that members can transfer their shares to somebody else, but in partnership उनको दूसरे को ट्रांसफर करते टाइम बाकी पार्टनर्स की परमिशन लेनी होती थी, कंसेंट लेनी होती थी, बट यहाँ पर शेयर होल्डर अपना शेयर चाहे तो दूसरे को सेल कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, और दूसरे शेयर होल्डर्स की उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है. परमिशन सिर्फ और सिर्फ कौन देगा? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. Capacity to sue and be sued. So this already discussed under the head separate legal entity. So now company, since a separate legal entity, it can be sued and it can sue others. Then here we are discussing the types of the company. There are various kinds of the company as per the Companies Act 2013. One is on the basis of the ownership. किसकी ownership है? तो ownership is of two types, government ownership and non-government ownership. So when we are saying government ownership, it means that at least 51% share should be owned by the government, maybe central government, state government, or in combination of central government or state government, or any subsidiary company which is of government. So here the 50% shares are owned by government, so that is why the company is called as the government company. Any company which is not a government company would be called as a non-government company. So here the government stake is maybe a government का stake हो या ना हो, लेकिन अगर है तो 50% 51% से कम होगा तो वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होगी, प्राइवेट के पास होगी ओनरशिप, प्राइवेट मे बी इंडिविजुअल और फर्म के पास ओनरशिप होगी.
इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, इनकॉर्पोरेशन का मतलब है वो कैसे बनी है, उसका बर्थ कैसे हुआ, उसके अकॉर्डिंगली कंपनीज ऑफ टू टाइप्स, स्टैच्यूटरी कंपनीज. Statutory companies are those which are formed by the act of the parliament. For example, RBI is formed by the act of the parliament. Registered companies are those which are not formed by parliament, but they are created by law. So here the companies which are created by Companies Act 1956 or Companies Act 2017 are called as registered companies. So they should be formed and registered under the Companies Act, which is prevalent at that period of time. जब भी वो बनी है उस टाइम कौन सा लॉ एप्लीकेबल है. देन लाइबिलिटी के बेसिस पे, लाइबिलिटी के बेसिस पे दो तरीके की कंपनी होती है, लिमिटेड कंपनी एंड अनलिमिटेड कंपनी. तो अगर लाइबिलिटी लिमिटेड है तो इट विल बी कॉल्ड एज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटी इज, और लिमिटेड लाइबिलिटी इज कि इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, जब कंपनी का वाइंड अप होगा, उसके एसेट्स को लिक्विडेट किया जाएगा, तो पहले जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं उनका डेट पे किया जाएगा और जो कुछ बचेगा वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, जैसे उनके पास जितनी शेयर होल्डिंग होगी उसके अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पर अगर मान लीजिए एसेट्स कम पड़ जाती हैं, डेट्स नहीं पूरे हो पा रहे हैं, तो मेंबर्स को पे करना है या नहीं करना है. अगर मेंबर्स की लायबिलिटी पहले ही डिसाइडेड है कि वो क्या पे करेंगे, देन इट इज कॉल्ड एज लिमिटेड लायबिलिटी. अगर मेंबर्स की लायबिलिटी फिक्स नहीं है इन एडवांस, तो इट इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लायबिलिटी. तो लिमिटेड लायबिलिटीज ऑफ टू टाइप्स, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड लिमिटेड बाय गारंटी. तो जहां पर लायबिलिटी इज इक्वल टू द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर, जो अभी शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया है वो अमाउंट ही उनकी लायबिलिटी है, तो इट इज कॉल्ड एज लिमिटेड बाय शेयर्स. एंड गारंटी का मतलब है कि यहाँ मेंबर्स ने गारंटी किया है कि वो उतना अमाउंट वाइंड अप के केस में देंगे टू दी डेट टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी. अनलिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पर लायबिलिटी फिक्स नहीं है, इसका मतलब कितनी भी लायबिलिटी हो सकती है, इट इज नॉट डिसाइडेड इन एडवांस. जो भी होगा दे हैव टू पे द होल लायबिलिटी. सो हियर द मेंबर इज लायबल फॉर डेट्स ऑफ द कंपनी विदाउट एनी लिमिटेड लायबिलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स ने कंपनी बनाई है उसके अकॉर्डिंगली भी इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी. प्राइवेट कंपनी में नंबर ऑफ मेंबर्स 2 से लेके 50 हो सकते हैं और मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपीस होता है. और यहाँ पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट ट्रांसफर कर सकते हैं. एंड यहाँ पर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को सब्सक्राइब नहीं कर सकती, यानी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती, आईपीओ लेकर नहीं आ सकती है अगर प्राइवेट कंपनी है. तो किसी कंपनी को अगर आईपीओ लाना है तो इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी वो है जो लिस्टेड है, जो इशू लेकर आई है, जिसने पब्लिक को इन्वाइट किया है टू सब्सक्राइब इट्स सिक्योरिटी. पब्लिक कंपनी जहां पर 7 से लेके अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं, पेड अप कैपिटल मिनिमम 5 लाख रुपीस होना चाहिए एंड इट शुड नॉट बी अ सब्सिडरी ऑफ प्राइवेट कंपनी. अगेन प्राइवेट और पब्लिक में वन मेजर डिफरेंस है पेड अप कैपिटल का, सेकंड मेजर डिफरेंस है नंबर ऑफ मेंबर्स का, थर्ड है कि क्या वो पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं या नहीं, एंड फोर्थ है कि प्राइवेट कंपनी के पास लायबिलिटीज कम होती हैं, ऑब्लिगेशंस कम होती हैं और पब्लिक कंपनी को बहुत सारी लीगल ऑब्लिगेशंस फॉलो करनी पड़ती हैं. इसलिए पब्लिक कंपनी जनरली स्टार्टअप्स नहीं बनाते हैं, दे स्टार्ट एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. 1% कंपनी जहां पर मेंबर कितने हैं 1, तो होल कैपिटल इज कंट्रोल्ड बाय 1%, दैट इज कॉल्ड एज 1% कंपनी. 1% कंपनी मतलब इक्वल टू सोल प्रोप्राइटरशिप. प्राइवेट कंपनी के पास कुछ प्रिविलेजेस होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं, इसलिए स्टार्टअप को प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में स्टार्ट करना चाहिए. सबसे पहला प्रिविलेज है इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, तो वो कम मेंबर्स के साथ भी स्टार्ट की जा सकती है. कम कितने, कम 2, अगर 2 भी हैं तभी भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं. सेकेंड प्रिविलेज है अलॉटमेंट बिफोर सब्सक्रिप्शन. तो प्राइवेट कंपनी फुली सब्सक्राइब्ड अगर नहीं होगा, मतलब वो जो शेयर लॉन्च कर रही है, पब्लिक को नहीं लेकिन जो अपने शेयर होल्डर्स को शेयर लॉन्च कर रही है, अगर वो फुली सब्सक्राइब नहीं है तभी भी वो अलॉट कर सकते हैं. लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए रूल होता है कि उनका 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए.
otherwise issue would be cancelled. प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं होती है प्राइवेट कंपनी को, प्रोस्पेक्टस तभी जरूरत होता है जब पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। न्यू शेयर इशू करते टाइम प्राइवेट कंपनी किसी भी तरीके के शेयर्स इशू कर सकती है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, और वो शेयर्स उसको अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर कर सकती है। बिजनेस का कमेंसमेंट प्राइवेट कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा तब से ही कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी को वेट करना पड़ता है एक और सर्टिफिकेट का, जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, तभी वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। इंडेक्स ऑफ मेंबर का मतलब है कि लिस्ट ऑफ मेंबर, कौन कौन मेंबर है, इसका इंडेक्स पब्लिक कंपनी को रखना जरूरी है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर 2 डायरेक्टर से ही काम चल सकता है। डायरेक्टर की रेम्यूनरेशन का जो रूल एप्लीकेबल होता है पब्लिक कंपनी पे कि नेट प्रॉफिट का 11% से ज्यादा डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन नहीं हो सकता, ये रूल भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। स्टैट्यूटरी मीटिंग्स एंड रिपोर्ट्स का जो रूल पब्लिक कंपनीज के लिए होता है वो भी प्राइवेट कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तुरंत किया जा सकता है, प्राइवेट को फायदा है, यहाँ पर किसी भी तरीके के शेयर इशू कर सकते हैं। न्यू शेयर इशू करते टाइम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे सकते हैं, प्रोस्पेक्टस की कोई जरूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन से पहले अलॉटमेंट हो सकता है, एंड कितने नंबर ऑफ मेंबर से स्टार्ट हो सकती है 2। सो ये इतने सारे फायदे मिलते हैं प्राइवेट कंपनी को, इसलिए जनरली स्टार्टअप्स दे प्रेफर टू स्टार्ट एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ओरिजिन के बेसिस पे कंपनी कहाँ की है उसके बेसिस पे इट इज ऑफ 2 टाइप्स, इंडियन एंड फॉरेन। इंडियन कंपनी वो कंपनी है जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस इंडिया में है और रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में है और जिसका इनकॉर्पोरेशन इंडिया में हुआ है बाय दी मे बी बाय दी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय दी लॉ, इंडियन लॉ। फॉरेन कंपनी वो है जो बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई है और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है। इट मींस इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड थ्रू एनी अदर लॉ बट नॉट थ्रू द इंडियन कंपनीज एक्ट और बाय द इंडियन पार्लियामेंट। स्मॉल कंपनी वो होती है, ये 2013 से नई टाइप ऑफ कंपनी आई है इस लॉ के अकॉर्डिंग, जहां पर पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होता है। Small company other than public company, it means small company is a type of the private company. Turnover उसके पिछले लास्ट पिछले ईयर का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये सारे एप्लीकेशन होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है, जो कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है उस पर भी नहीं है, और किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू कंपनी बनी है तभी भी स्मॉल कंपनी नहीं हो सकती है। एसोसिएट कंपनी वो है जिसमें जहां पर किसी कंपनी का 20% से ज्यादा स्टेक है, यानी अगर ए कंपनी का बी कंपनी में 20% स्टेक है तो बी कंपनी विल बी कॉल्ड एज अ एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी इज नॉट दी होल्डिंग, नॉट दी सब्सिडरी कंपनी, इट इज अनदर टाइप ऑफ कंपनी। एक चीज यहाँ पर बता दूं, होल्डिंग कंपनी वो होती है जिसका कंट्रोल होता है दूसरी कंपनी पे, और सब्सिडरी कंपनी वो होती है जिसको कंट्रोल किया जाता है। तो होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को कंट्रोल करती है शेयर्स के थ्रू, उसके पास अगर 51% से ज्यादा शेयर्स होते हैं, 51 या उससे ज्यादा शेयर होते हैं, या वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। So then there can be another classification, holding company and subsidiary company. But since there are various large types of classification of the company, so we have only discussed the important ones. Then how the company can be formed? This every person should know who is into the entrepreneurship. They should know how to start a company. First they should decide what is the mode of incorporation. It means what kind of company they want to make, limited company or unlimited company, private company or public company, या 1 person company. Accordingly जो भी वो company बनाएंगे they have to prepare their documents, and documents are to be filed with the registrar of companies. Then registrar of companies after scrutinizing the documents, the ROC or registrar of companies will issue a certificate of incorporation. Here the private company can start the business immediately after getting this in certificate of incorporation, but the public company has to wait to get another certificate of commencement of business. Then the company would be called as a registered company.
So registered company is only a valid company. Unregistered company would not be a valid company. So every company need to be registered to be called as a company under the Companies Act 2013. Now where to register? Here is a if you go to internet, you will find a site, Ministry of Corporate Affairs. उस site पर जाकर के you can find out how to incorporate a company. The documents which are to be filed to ROC are Memorandum of Association. Memorandum of Association is the charter of the company, constitution of company. ये बताएगा company क्या है, capital क्या है, company का place क्या है. Articles of Association बताएगा company के rules and regulations, duties and liabilities of shareholders. एग्रीमेंट्स और भी हैं, वो भी सबमिट होने चाहिए. रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस क्या है, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी होना चाहिए along with the consent of directors. There should be undertaking by directors कि वो they are ready to take the qualification shares. Then statutory declaration by the advocate or attorney or chartered accountant practicing in India who is engaged in the formation of company is named in the articles as director, manager or secretary of the company. Then there is a term promoter. Promoters are those people who get the idea of starting the business and they do all the formalities regarding formation of the company. So anybody, any member जो इनिशियल जो जिन्होंने इनिशियल ये सोचा कि कंपनी बनाई जाए, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाए, सबमिट किए, एग्रीमेंट्स किए, अपॉइंटमेंट्स किए, दैट विल बी कॉल्ड एज दी प्रोमोटर. तो एज सच प्रोमोटर की कंपनी में कोई पोजीशन नहीं होती है, लेकिन प्रोमोटर शेयर लेकर के कंपनी का शेयर होल्डर बन सकता है एंड उसके थ्रू वो अपना रेम्यूनरेशन ले सकता है. बट प्रोमोटर इज नॉट अ लीगल पोजीशन इन द कंट्री, सॉरी कंपनी. Now how the company is managed. The company is managed through the directors. Now who is director? Director is the person who has direct control over the direction, conduct, management or superintendence of the affairs of company. But only individuals can be directors. Number of directors कितने हो सकते हैं? Minimum 2 प्राइवेट के लिए एंड 3 पब्लिक के लिए. मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताएंगे किसी कंपनी में कितने मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन 12 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर 12 से ज्यादा डायरेक्टर्स हायर करने हैं तो. पब्लिक कंपनी जिनका शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ज्यादा है और उनके 100 से ज्यादा शेयर होल्डर्स हैं, तो उनको स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए एक डायरेक्टर उनके पास होना चाहिए. डायरेक्टर्स को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है बाय ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन टू गेट द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल. दिस इज हाउ द कंपनी कैन बी मैनेज्ड. देन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी. कंपनी बन गई है, कंपनी सही से अगर नहीं चल रही है तो कंपनी को वाइंड अप भी किया जा सकता है. कंपनी का वाइंड अप कैसे होता है? कंपनी का वाइंड अप का मतलब है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी. लिक्विडेशन का मतलब है कि कंपनी की एसेट्स को सेल किया जाए, डेट्स को पे किया जाए, जो भी एसेट्स के सेल करने से पैसा आया है, और सरप्लस जो भी बचेगा वो मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन इन देयर होल्डिंग्स. Then there is a person called as liquidator is appointed for the liquidation. लिक्विडेशन के लिए लिक्विडेटर एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जो मे बी शेयर होल्डर्स कर सकते हैं या जिसको ट्राइब्यूनल कर सकता है, कोर्ट कर सकता है. वाइंडिंग अप के 2 तरीके हैं. ट्राइब्यूनल के थ्रू होता है वाइंडिंग अप या वॉलेंट्री वाइंडिंग अप होता है. वॉलेंट्री वाइंडिंग अप भी 2 तरीके का होता है, मेंबर्स के थ्रू या क्रेडिटर्स के थ्रू. तो ट्राइब्यूनल के थ्रू वाइंड अप कैसे होता है? Tribunal is its company law board tribunal. So it is a kind of court which can order for the liquidation of the company. So liquidation के लिए जब कोर्ट ऑर्डर करेगा तो क्यों करेगा? बिकॉज या तो हो सकता है कंपनी में स्पेशल रिजोल्यूशन पास हुआ हो, शेयर होल्डर्स ने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया हो टू वाइंड अप द कंपनी, और वो जो रिजोल्यूशन पास हुआ है वो कब हो सकता है? जब कंपनी ने अपनी स्टैच्यूटरी रिपोर्ट्स रजिस्ट्रार को सबमिट ना किए हो, स्टैच्यूटरी मीटिंग्स ना कंडक्ट की गई हो, बिजनेस को अच्छे से कमेंस ना किया हो, सस्पेंशन ऑफ बिजनेस रहा हो, मेंबरशिप कम हो गई हो जितनी होनी चाहिए,
या कंपनी अपने डेट्स नहीं पे कर पा रही है, और जो भी बोर्ड को लगता है सही, जस्ट एंड इक्विटेबल। तो यहाँ कुछ डिफाइन नहीं है कि क्या, लेकिन अगर कंपनी फ्रॉड करती है, कंपनी इंटरेस्ट कंट्री के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करती है, तो इन कंडीशंस में ट्राइब्यूनल कंपनी का वाइंड अप ऑर्डर कर सकता है। वॉलेंट्री वाइंडिंग अप का मतलब है कि यहाँ पर ट्राइब्यूनल, कोर्ट इन्वॉल्व नहीं है, मेंबर्स और क्रेडिटर्स मिलकर के अप्लाई कर रहे हैं वाइंड अप के लिए, वो खुद से ही अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर वॉलेंट्री है, बाय विलिंगनेस। सो इट इज ऑफ टू टाइप्स, जब मेंबर करते हैं एंड जब क्रेडिटर्स करते हैं। मेंबर्स जब वाइंड अप के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देना होता है। इसका मतलब है कि उन्हें ये बताना होगा कि कंपनी के पास एनफ फंड है टू पे दी डेट्स, और ऑडिटर की रिपोर्ट की कॉपी देनी पड़ती है उसी साल की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबमिट करना होता है, बैलेंस शीट सबमिट करनी होती है, और लिक्विडेटर हायर करना होता है और उसको रेम्यूनरेशन भी देना होता है। एंड देन जब लिक्विडेटर ये सारा प्रोसेस परफॉर्म करता है तो फाइनल मीटिंग होती है, उसमें बताया जाता है कि एसेट्स किस तरीके से डिस्पोज की गई हैं और कैसे डेट्स को पे किया गया है। सो देन देयर इज डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। सेम प्रोसीजर क्रेडिटर्स के लिए होता है, लेकिन क्रेडिटर्स को सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है और अकाउंट्स का भी अकाउंट सबमिट करने की भी जरूरत नहीं है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। तो यहाँ पर वॉलेंट्री बाइंडिंग आप मेंबर्स के थ्रू हो सकती है। मेंबर्स कौन है? शेयर होल्डर्स हैं, एंड क्रेडिटर्स वो हैं जिन्होंने कंपनी को डेट दिया है, पैसा दिया है। सो कंपनी अगर अनेबल है उनको पे करने में, या शेयर होल्डर्स को प्रॉब्लम है कंपनी के चलने से, कंपनी उस वो जो भी पर्पस है वो नहीं पूरा कर पा रही है, मेंबर्स खुश नहीं है, तो उस केस में दे कैन अप्लाई फॉर वॉलेंट्री बाइंडिंग अप। ये कब अप्लाई करते हैं? ये मीटिंग्स में अप्लाई करते हैं, और रिजोल्यूशंस पास होते हैं, अगर मेजोरिटी से पास हो जाते हैं देन कंपनी का बाइंडिंग अप हो सकता है। So this is the last stage of the company. This is all about today's lecture. Thank you. I hope you are getting all the concepts